बड़ी टीमों को हराकर जिन 2 टीम से इस टूर्नामेंट के फाइनल्स में अपनी जगह बनाई है वो है अनुपम के अजूबे और विनीता के वॉरियर्स। ये मैच इतना रोमांचक होने वाला है कि यकीनन आपके दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी। Vinita's Warriors up against Anupam K. Ajube. Vinita's Warriors are leading by 1 point. Final moments of this game, and Anupam K. Ajube have Omraj raiding for them. Looks for the toe touch on the far side. Comes back to the middle. Looks for the cover. The jump over the chain. That is fantastic. Anupam K. Ajube back in the match. Final raid of the encounter. The scores are level. This is what it comes down to. The champion of Shark Tank, right here. Anupam K. Ajube have Omraj. The defense down to 4. It's a huge dash. He's off court, and it's a win for Vinita's Warriors. This is history being created in the Shark Tank. Well done, boys. Well played. Well done, well done. Sharks, मजा आया? बिल्कुल मजा आया, बहुत I'm मजा glad. आपने सिर्फ देखा एक छोटा सा glimpse of why kabaddi is gripping the nation completely over the last few years as well. लेकिन कबड्डी एक खेल है जिसमें सिर्फ जमीन चाहिए और लोग चाहिए. ये खेल जो है भारत का खेल है और ये 4000 साल पुराना खेल है. लेकिन भारत का खेल has come back in an all new avatar. It's back with a bang as well, and it is today India's second most watched sport. 50 करोड़ लोग अभी कबड्डी देख रहे हैं हमारे देश में. तो मैं हूं सुहेल चंदोक, मेरे साथ है अरविंद शिवदास और हम हैं co-founders at कबड्डी अड्डा. So Kabaddi Adda is a platform where we aim to bring Kabaddi to the screens of every Indian household every day of the year. ये करते कैसे हम हैं सुहेल? ये करते हैं with the use of our 3 pillars of foundation. हमारा first pillar है हमारा content and distribution platform. ये हमारा बेस प्लेटफॉर्म है, हमारा वेबसाइट, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स. हमारे पास 1.5 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं और हमसे जुड़े हैं 5 लाख से ज़्यादा एंगेज सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी. Yeah, absolutely, and that's a huge number for us already. हमारे दूसरा पिलर है it is obviously our tournament in a box, यानी हमारा tournament suite. यहाँ हम एग्जिस्टिंग लोकल कबड्डी टूर्नामेंट्स को स्प्रूस अप करते हैं, उनको रेलेवेंस देते हैं, उनके लिए व्यूअर्स लाते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी ब्रिंग रेवेन्यू स्ट्रीम. और हमारा तीसरा and our latest initiative, it's our very own tournament, the K7. So K7 is an asset that we own completely. It's 83 games in our first season. For us, it's really a platform, a product where we wanted to give a platform for youth talent to showcase ability, to showcase talent. 20 players have already received contracts in Pro Kabaddi franchising. That's more than 10% of all the players that were picked up in the recent Pro Kabaddi auction. And that for us is a huge, huge heartwarming fact, given that it's boys that have come through like this. लेकिन यही हम कर रहे हैं K7 और कबड्डी अड्डा के साथ. We are transforming lives through the power of sport. मैं अपनी पूरी पैनल को अरविंद से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ. So, of all the passionate about sports people in the world that I know, I think Arvind's probably on top. ये मेरे बैचमेट हैं IIT मद्रास से और हम दोनों इंटर IIT स्पोर्ट खेलते थे फॉर IIT मद्रास. एंड उनकी जो वाइफ है धन्या, शी वाज माय बैडमिंटन पार्टनर एंड हमने IIT मद्रास के लिए गोल्ड जीता था साथ में. Many years ago, she's also a co-founder with us. Dhanya, his wife is also she's our third co-founder. Okay, तो आपको पता था ये आ रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था. इनफैक्ट We kept it quiet. आपने तभी इनकी टीम को जिताया है. of course. नहीं, आपको हम चांस देंगे अगर आप खेलना है तो. You have a choice. You can win it for your team. Would you like to try an ankle hold? कबड्डी? Yeah. Yes, they'll. Try करना? Your team can win. चलो, let's go. Come on, let's go यार. Just call it कौन था? I don't know. अमन सोच के जाओ. You have a chance, Anupam. मैं जीतने के लिए खेलता हूँ. तो कौन जीतने वाली टीम कौन सी है? अभी एक आप जिताओगे है. अपनी अभी team. 1-1 है. I am in it to win it. देखो वो You're trailing by 1 point. दंगल वाली फीलिंग क्यों आ रही है थोड़ी-थोड़ी? भाइयों देखो ध्यान से मार. मैं पहले बता रहा हूँ मारना मत. और नहीं समझो, अगर तुम पकड़ लोगे ना तभी रोक के रख देंगे फिर. ठीक है चलो यार. Come on. Oh sorry, ये नहीं ये करना. बॉक्सिंग नहीं है. Let's see if this boat can ride the wave, it'll be great. Guys, छोड़ना मत. तू नहीं बोल रहा था इसमें? कबड्डी. कबड्डी. और करना कहाँ, जाना कहाँ है?
वो लाइन को वापस टच इधर- करके इधर वापस तक। आ रहा है. अच्छा ठीक है, ये तो बहुत इजी है. एंगल ले लो, एंगल. Quick. Go for it. 2 touches and get out. Get out. मैं जीता. एक point अभी tie है. Well done. You've made it a tie. अच्छा. Oh, now it's equal, right? Yes. See, Anupam, for you. We made it a Thank tie you, for brother. Anupam so that there Thank can be a you. tie in the marriage as well with अरे Shadi. बिल्कुल, thank you. Always equal. Thank you so much. हमारे शार्क्स के लिए एक tie 5 मारो. Yeah, on the count of 3. 1, 2, 3. tie 5. Thanks, boys. Thank you. Well played. High five. I like that. सबसे पहले तो मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है, ये जो देश है क्रिकेट का, इसमें कबड्डी का इंटरेस्ट कहाँ से, किसको जागा आप दोनों में से और कैसे जागा? Fine. ये क्रिकेट का देश अभी नहीं है. ये क्रिकेट और कबड्डी का देश बन गया है. I've been involved with the Pro Kabaddi League since 2014 as a presenter, as a commentator with them. और जब पहले गेम शुरू हुआ था 2014 में और जब वो लाइट आए थे मैच पे, we knew we were on to something special. I mean, I'm getting goosebumps now because उस दिन, you know, Amitabh ji, Sachin, Amir Khan, everyone came in to watch this sport. और हमको actually उस समय पता नहीं था कि क्या होगा. I remember a lot of people said, अगले क्या आएगा, गिल्ली डंडा लीग, खो खो लीग क्या आएगा, you know, but everyone was proved wrong, including, I'll say myself, right? I think I was a professional cricketer going back 6 to 8 years. I don't think I would have been standing here today as a kabaddi co-founder or a kabaddi commentator, right? I'll be तो honest आपने with you. बोला आप खुद क्रिकेटर थे. Yes. Unfortunately, when I had an IPL contract in hand back in 2009, I had my first surgery on my knee in 2010 January. sorry to hear that. Had a subsequent surgery in 2012 and then in 14 as well. So I've had 3 knee surgeries. And I guess I had to give up that dream. But in some sense, I guess cricket was still cricket's still my first love. Yeah. But kabaddi's become life. You know, Nice. and I think in that sense, it's given me a second innings, which I think a lot of Remind people. you his wife he met at I kabaddi. also met my wife through kabaddi. देखो So I कहते हैं ना think, कुछ पाने के लिए कुछ खोना कुछ पड़ता है. पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. शार्क्स हमारे देश में कोई बच्चा कोई स्पोर्ट खेलते ना खेलते क्रिकेट तो एक बार जरूर खेलते. हम सबको क्रिकेट इतना पसंद है हम बैटिंग ही करनी चाहते हैं. एक अच्छा बैटर बनाने के लिए एक अच्छा बॉलर चाहिए. लगभग 40 लाख क्रिकेट खेलने वाले बच्चों में से 70% क्रिकेटर्स टायर 2 या टायर 3 सिटी से आते हैं, जहां अच्छा बॉलर्स तो दूर की बात है, क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता. वहां की कोचेस, फ्रेंड्स या पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 बॉल डाल सकते हैं. इसलिए बैटर्स को उनका ट्रेनिंग के लिए स्पीड और स्विंग नहीं कर पाता. तो बैटर को एक बजट फ्रेंडली और रियल लाइफ जैसा बॉलिंग के साथ ट्रेनिंग करवाने के लिए हम लेकर आए हैं फ्री बॉलर. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्रतीक पालानेत्रा. नमस्ते शार्क, मेरा नाम है विश्वनाथ एचके और हम बैंगलोर से आया है. फ्री बॉलर एक ऐसा मैकेनिकल बॉलिंग मशीन है जो सिर्फ स्प्रिंग और बैटरी पे चलता है. आप हमारा ये प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट से खरीद सकता है और खुद से आप इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हैं. हमने आज तक 15 कंट्रीज में लगभग 1000 बॉलिंग मशीन सेल किया है. क्रिकेट एकेडमीज को, इंडिविजुअल क्रिकेटर्स को, स्कूल्स और कॉलेजेस को. शार्क्स हमारा विजन है कि हमारी इस इनोवेटिव प्रोडक्ट के मदद से सब लेवल क्रिकेटर्स को एक बेहतर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जैसा एक क्रिकेटर को मिलते हैं. So Prateek and Vishwanathan, welcome to Shark Tank. थैंक यू. आप क्रिकेट खेलते हैं खुद? हाँ सर, मैं कर्नाटक का रेस्पोंसिबिलिटी गया हूँ अंडर 16 एज का. Wow. और मैं यूनिवर्सिटी भी खेला हूँ. क्वालिफाइड कोच हूँ, क्वालिफाइड अंपायर हूँ. और प्रतीक आप? हम दोनों साथ से क्रिकेट खेला है अंडर 13, अंडर 15 एज से. So I also happen to be cousins with KL Rahul, who's currently on the Indian national team. Wow. So that's my background. Played a lot of cricket together growing up. वाओ. आप दोनों में इक्विटी स्प्लिट और कौन क्या करता है, क्या डेजिग्नेशन है? I take care of the business development, product development, marketing मेरा departments है. Of course founder, equity percent है मेरा 32.6%. और आपका? मैं ऑपरेशंस, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स और कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट देखता हूँ. मेरा इक्विटी है 21.74%. They have his father as a passive investor who has an equity of same as Pratik. They have Ashwin as our brand ambassador. Oh. So he has an equity of 13.04%. One thing where I think the free bowler will really tick is the ease at which it's actually folded and carried around. You take it somewhere, the fact that it can actually swing the ball, there are natural variations.
I'm not going to be able to bowl 12 outswingers on the trot, but a free bowler probably can. हम लोग अश्विन के बहुत फैन हैं. अश्विन तो ये लेजेंडरी प्लेयर है. तो इसका डेमो वेमो दो ना. सो हमारा 2 वेरिएंट्स है, ऑफ कोर्स नॉन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक वर्जन. अच्छा इलेक्ट्रिक भी है आपके पास? बैटरी ऑपरेटेड. तो आपको डेमो दिखाने के लिए हम 2 क्रिकेटर्स को बुलाया है. ले आओ, ले आओ. श्योर आ जाओ. वाओ, कम ऑन गाइस. ये प्रीतम राठौड़ है, 13 साल का, मुंबई से. हाय हाय शख्स. Hey buddy, ये प्रियंका राठौड़ है, 18 साल का, मुंबई से. हाय शख्स. I love your t-shirt. Huh? Cricket is big. Nice. थैंक यू. Nice. चलिए भाई. मेक श्योर द मशीन इज स्टेबल. आप आर्म ऐसा पुल करके और 2 फिंगर्स पुल इट, लॉक इट, ग्रैब दीस हैंडल्स, थोड़ा प्रेशर दबा के ऐसा लॉक करना. बॉल बैक से आप बॉल ये लेकिन होगी जनरली सीजन बॉल. जनरली सीजन यहाँ पे सेफ्टी के लिए कई बॉल आप यूज कर सकते हैं. ओ भाई साहब. अच्छा ये हर बार ऐसा करना पड़ेगा. There's a manual power. मैनुअल बैटरी वाले आप. Swing operated. ये यॉर्कर था, मैं लेंथ अभी थोड़ा चेंज किया है. अच्छा. ये रिस्ट पोजीशन जैसा एंगल मूव होता है. आप इधर देखा तो हाँ. मूव हो रहा Right. है. लॉक इट. Wow. ऐसा कोई ग्लोबली ऐसा ग्लोबली exist ऐसा नहीं प्रोडक्ट नहीं है. चलो आ जा विनीता. आपके पास पेटेंट है इसका? यस. मैडम के गिरने के चांसेस पूरे. क्लिक क्लिक नॉइज हैज टू कम. या बॉल के साथ तुम मत चले जाना. ओके, आर यू रेडी? वो डर गया बेचारा. वो बाउंस क्यों हुआ बॉल ये? भाई Short length adjust. यहाँ पे अगर किसी का आ गया फिंगर वगैरह तो इमीडिएटली. हमने ऐसा डिजाइन किया है, फिंगर इधर नहीं जाते, बट आपका पॉइंट Valid इट्स है. वेरी राइट. इसका वेरिएशन कितना हो सकता है? कितनी स्पीड पे जा सकता है? मैक्सिमम क्या आप है? 130 तक फेंक सकते हैं. प्रतीक, शो द नेक्स्ट मशीन. मतलब ये बैटरी ऑपरेटेड है. नॉइजी मशीन्स. तो लेदर बॉल तो आप अंदर उसमें डाल देंगे, वो एक-एक पिक करता रहेगा. हाँ, एक-एक पिक Right? करेगा. गुड, थैंक यू गाइस. Thank you. Thank you. इसका प्राइस क्या है? मैनुअल का 20,000 है. इलेक्ट्रिक वर्जन अभी व्हेन वी लॉन्च इट इट्स गोइंग टू बी अराउंड 40,000. प्रतीक, आपने ये जो मशीन बनाई, आपको लगता है ये स्केल करेगी ये वाली? ये काफी अभी रूडिमेंटरी लग रही है. बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बैलेंस, रिस्क भी लगता है बहुत हाई है. आप जो पॉइंट्स सेफ्टी या अदर पॉइंट्स आप लोगों ने बताया, वी कैन फिक्स इट. दिस इज वी वांटेड टू एंटर अ मार्केट विद अ सिंपलिस्टिक प्रोडक्ट, प्राइस वर्थी, वेयर वी कैन गेट स्टार्टेड. एंड देन विद ऑल द फीडबैक वी हैव टेकन, ये हमने ये बिल्ड किया. मार्केट में जो भी बॉलिंग मशीन्स अवेलेबल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है. तो आपने बताया कि 1000 मशीन्स आपने बेची है. एक तो आपका सेल्स कितना हुआ है और कस्टमर स्प्लिट? 70 to 75% हमने इंडिविजुअल ट्रेडर्स को बेचा है. अराउंड 20-25% क्लब्स ने खरीदा है, एंड द रिमेनिंग इज स्कूल्स, कॉलेजेस. कैसे बेच रहे हैं इंडिविजुअल्स को? टिल नाउ वी हैव बीन सेलिंग इट यूजिंग आवर सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स. अभी तक एक्सटेंसिव डीलर नेटवर्क नहीं है. शख्स, मैं लेके चलता हूँ आपको आपके बचपन की तरफ. हम सबका बचपन 3 पिलर्स पे खड़ा था. सुबह उठ के स्कूल जाना, शाम में फिर ट्यूशन क्लास जाना और फिर बिल्डिंग के नीचे दोस्तों के साथ खेलना. हमारे देश में जब भी पढ़ाई और स्पोर्ट्स में रेस होती है तो हमेशा पढ़ाई जीत जाती है. स्कूल में दिए जाते हैं 2 पीटी पीरियड और उम्मीद की जाती है ढेर सारे ओलंपिक और कॉमनवेल्थ मेडल्स की. कंपटीशन तो छोड़ो, खेल हमें वो लाइफ स्किल सिखाता है जो शायद ही कोई बुक या स्कूल में सिखाया जाता है. तो बच्चों की लाइफ में स्पोर्ट की अहमियत को बढ़ाने हम लेके आए हैं ABC फिटनेस फर्म. नमस्ते शख्स, मेरा नाम है रोशन
और मैं हूँ अनिरुद्ध और हम आए हैं पुणे से। ओके, सो एबीसी फिटनेस फॉर्म एक ऐसा प्रोग्राम चलाता है जहाँ पे हम बच्चों के रेगुलर प्ले टाइम को ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक और कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। हम बच्चों को अपने पास नहीं बुलाते, हम बच्चों के पास जाते हैं, उनकी सोसाइटीज में और उनके नजदीकी स्कूलों में। हम 4 साल से 16 साल के बच्चों को 2 पिज्जास की रेट में महीने भर का क्वालिटी स्पोर्ट्स एजुकेशन देते हैं। हमारे पास 85 सर्टिफाइड कोचेस है जो कि स्टेट एंड नेशनल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हम बच्चों को बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, जिम्नास्टिक ऐसे स्पोर्ट्स सिखाते हैं। बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे बच्चे आज डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा। जाक्स, क्या आप हमारे कुछ स्टूडेंट से मिलना चाहेंगे? हाँ, मिलाइए, जरूर जरूर। बाय द वे, मेरे बच्चे इनके स्टूडेंट्स हैं। वाओ। और इनके लीग में मैं आ चुकी हूँ। Wow. Hey kids. Hello. Hi, Sharks. Hi, Sharks. How are you? We're good. So, Sharks, we would like to challenge you to a basketball shooting competition. Oh yeah. Jesus. अगर आप जीते तो आपको मिलेंगे ढेर सारे चॉकलेट्स। तो Sharks, are you up for the challenge? Yeah, let's do it. आप 3 और आप 1 उनके हाथ आ जाओ। आप 4, हम 4। ओके, लेट्स गो अमन। Well done. Thank you. छोड़ दिया, मुझे लगा सिर्फ स्टाइल मारना है। Well done, Vinita. लाओ। कौन पीयूष? ये तो Yeah, ना? स्टार्ट है। Air ball. No problem. चलिए चलिए. Ship. Come on, Anupam. कोई नहीं। और आप ट्राई करो। अनिरुद्ध. लेट्स गो Come on, मैम। अनिरुद्ध. ओह, डेढ़ हो गया। लेकिन इक्विटी लेके जाएंगे, don't worry। Chocolates का है। Hello, where are the chocolates? Oh, you ask Anirudh sir. धोखा। Good, well played. Thank you, kids. अनिरुद्ध और रोशन, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। बहुत अच्छा लगा खेल के। आप लोगों ने कुछ पढ़ाई वढ़ाई करी है या खेल कूद में टाइम लगा सर, हम दिया? दोनों इंजीनियर्स हैं। ओ वाह। मतलब पढ़ाई नहीं की। इंजीनियरिंग कहाँ से की थी? इंजीनियरिंग सर मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से की। और उसके बाद क्या किया था? सर उसके बाद 1 साल सोचा कि क्या करना है। और फिर उसके बाद? उसके बाद सर होम ट्यूशन शुरू किए। अच्छा। और फिर वहाँ पे सोसाइटी में ग्राउंड था, मैं आधा घंटा पहले जाता था वहाँ पे, हाँ। जस्ट खेलने के लिए, ऐसे सिखाने का कोई प्लान नहीं था। ठीक है। तो वहाँ पे बच्चों के साथ खेलने लग गया, तो 1 बच्चा आया, फिर 2 बच्चे आए, फिर 3 बच्चे आए, फिर एक पेरेंट आया मेरे पास, बोले सर आप ये सिखा रहे हो ना, आप इसका कुछ पैसे ले लो इसके, सिखाओ करके। मैंने बोला अरे इसके पैसे भी मिलते हैं। तो फिर मैंने सिखाना शुरू किया। सही है। फिर 5 से 10 बच्चे हो गए, 50 बच्चे हो गए, और फिर मुझे लगा कि मेरे अकेले का काम नहीं, फिर मैंने टीम बनाई। अच्छा। पहले मेरे पास खुद के पास जॉब नहीं थी, आज मैं 85 लोगों को जॉब दिया है सर। जब वड़ा पाव खाते थे तब बिजनेस शुरू किया था सर, आज हम लोग मालदीव्स में बैठ जाते हैं सर। वाओ। बहुत अच्छे भाई, Very दिल से nice. सलाम आपको। Good job. और रोशन आपने क्या किया? मैंने भी इंजीनियरिंग की है सर, यवतमाल से। हाँ। और उसके बाद मैं भी 1 साल घर पे ही था। अच्छा, ये क्या कॉमन ट्रेट है क्या कुछ? नहीं, मैं जॉब ढूंढ रहा था, सर लेकिन इंडिया मिल नहीं रही थी। में लड़का पहले इंजीनियरिंग करता है, बाद में डिसाइड करता है कि करना क्या है। बात सही, बात बिल्कुल सही। आप इससे कैसे मिले? ये मेरा फर्स्ट कजन है। ओह नाइस।
मैंने वही सोचा कि मेरे पैशन को मैं मेरे बिजनेस और मेरे करियर में कन्वर्ट करता हूँ और हमारा मेन है प्रो लीग्स। जैसे नमिता मैम ने बताया, वो टीम ओनर थे एक इसके। आप थोड़ा ये प्रो लीग समझाएंगे कि ये चलता क्या है, ये क्या? सर, प्रो लीग हमारा न्यू कंसेप्ट है बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जैसे आईपीएल टाइप का फॉर्मेट है, लेकिन वो उधर होता है जो लोकल लेवल पे गलियों पे बच्चे खेलते हैं, उनका क्या। तो हमने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया, बच्चे को टूर्नामेंट खेलने मिल रहा है, वो लाइव टेलीकास्ट होते हैं मैचेस। और इसको हमको स्टार स्पोर्ट्स के लेवल पे लेके जाना है, जहाँ पे आज बड़े लोगों के मैचेस चल रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में प्रो लीग इंटर टीम कंपटीशन हो, इंटर टीम कंपटीशन है लोकल लेवल पे। ठीक है। तो इनका एक आईपीएल टाइप फॉर्मेट था पुणे में, एंड वहाँ अलग अलग टीम्स थे और टीम के ओनर्स थे। मी एंड माय हस्बैंड, वी वर वन ऑफ द टीम ओनर्स। I must say that my experience was very positive. इसमें लकीली नमिता मैम के बच्चे भी खेल रहे थे। Yeah, of course. टीम कितने में खरीदी? वो मैं नहीं बताऊंगी। प्रो लीग के चक्कर में बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं। अभी 3 बच्चों में से एक बच्ची छोटी नेशनल है और दूसरी स्टेट है। वाह। अभी आपने कितने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल प्लेयर्स? सर, हमारे एकेडमी में जितने भी बच्चे खेल रहे हैं उसमें से 5 to 10% ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। 5 to 10%? Yes. बहुत ज्यादा है। कौन सा कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट होगा ना जहाँ पे आप excel सर, करें? मेनली बास्केटबॉल एंड टेनिस। हाँ, तो बास्केटबॉल अभी बड़ा है इंडिया में? नहीं है। सर, वो 5th लार्जेस्ट गेम है अभी भी इंडिया का, लेकिन उसको अभी खो खो की भी लीग आ रही है, लेकिन बास्केटबॉल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपने क्यों सोचा कि ये बड़ा बिजनेस बनेगा? क्योंकि इसमें अभी तक किसी ने बड़े लेवल पे नहीं खेला है। हमारे पास 2500 बच्चे पुणे में और हमारी एवरेज फीस है 1000 रुपए। तो हमारा 25 लाख का टर्नओवर महीने का बनता है। ऑफिस का कोई एक्सपेंस होता है वो तो 25 लाख में से श्योर शॉर्ट प्रॉफिट आ जाता है। प्रो लीग में कितना कमाते हो? हमने प्रो लीग में सर 1.5 से 2 लाख रुपए कमाए पहली वाली में। रोशन, अनिरुद्ध, एक बात पूछूं आपसे। सबसे sir. बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है कि आप इसको स्केल कैसे करोगे? मुझे मेरे जैसे एबीसी हेड्स रेडी करने हर एक सेंटर के लिए, और बड़े बड़े बीपीएड कॉलेज और जो फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है वहाँ से टैलेंट एक्वायर करना है और उनको सिटी में अलग अलग सिटीज में ऑफिसेज में उनको ये करना है और एक टीम बनानी है सोसाइटी एक्विजिशंस के लिए। ये हमारा प्लान है। समझ गए। ये टफ बिजनेस है स्केलिंग के पर्सपेक्टिव से। प्रॉफिटेबल बिजनेस बनेगा फॉर श्योर, एंड मे बी ग्रो भी करेगा, बट वो लीनियर होगा, एक्सपोनेंशियल नहीं होगा। तो इसलिए मैं इससे आउट हूँ। बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक इंडिया का में एक्सपोर्टिंग कल्चर अगर आप ला पाएंगे तो ये काबिले तारीफ होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।